Good morning to each one of you present today. It's a moment of extreme pleasure to welcome the guests who are present here to attend this national seminar on Sustainable Development Goals, Teacher Education Programs. On behalf of the Central Academy fraternity, I offer my regards to all the esteemed guests and the people joining us. I convey my regard to the chief guest of the day, Professor Anil Kumar Shukla, Vice Chancellor, MDS University Ajmer. Professor Shukla ji has also been the Vice Chancellor of MGP, Rohilkhand University, Bareilly, and Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow. He has also served as Professor, Head and Dean in the Faculty of Education, University of Lucknow. Having teaching experience of more than 35 years, alongside various administrative capacities, he introduced and successfully executed many innovative approaches in teaching in the classroom. Professor Shukla is the recipient of some very prestigious fellowship, Fulbright Fellow, US, Commonwealth Fellow, Oxford University, UK, and Korea Foundation Fellow. South Korea helping him in making his vision of higher education global in outlook and rooted to culture. Having research interest in quality education and teacher education and internationalization of higher education, he has authored more than 7 books and has about 45 publications in different journals with international repute. He has attended and pioneered several national and international seminars, conferences, campaigns, and exhibitions on contemporary issues, and has worked for various international research projects funded from World Bank and several national agencies. He has been the President and General Secretary of Teachers Association of Lucknow University. He is an academician with administrative capabilities and innovative ideas in education. Today, we all are blessed to have him amongst us and will definitely be enlightened by his words of wisdom and will develop an insight to teacher education programs as a tool of sustainable development goals. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and coming over for the seminar. Now, I would like to invite sir for their valuable words. स्मारक हॉल शोभा सुमन मिश्रा जी का स्वागत, टीएन मिश्रा जी की यादें, आरुष जी का सानिध्य, नागेंद्र जी गोस्वामी जी का संबल, अंजलि जी अपने क्षेत्र की बहुत विदुषी महिला, अजय सिंह जी की मित्रता, भारतीय शिक्षा मंडल की विचारधारा से पल्लवित पुष्पित ये संस्थान, शिक्षकों और विद्यार्थियों, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां से शुरुआत करूं। मैं अंदर बिल्डिंग में आ रहा था, रैंप से अजय जी लेकर के आ रहे थे, सामने बताया कि ये नाग पर्वत है। मैंने कहानियों में पढ़ा था कि जो पुराने नाग होते थे वो मणि धारित करते थे, उनमें मणि होती थी और कभी कभी वो मणि अंदर से निकाल करके बाहर रख देते थे जिससे आसपास बड़ी रोशनी रहती थी। हमें लगता है कि नाग पर्वत अपनी मणि सेंट्रल एकेडमी के रूप में बाहर निकाल करके फिर अंदर रखना भूल गया और हमें लगता है कि नाग पर्वत अपनी मणि अंदर रखना भूला रहे। यही हम लोगों के लिए अच्छा है, उसके प्रकाश आपको। मैं संस्था का नाम भी पढ़ रहा था, सेंट्रल एकेडमी। मुझे लगा कि मिश्र जी ने इसका नाम एकेडमी क्यों रखा, सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, सेंटर ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं रखा। सेमिनार भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर था। मैं सोच रहा था कहीं इन दोनों में कोई रिश्ता तो नहीं है। एकेडमी वर्ड जब दिमाग में आता है तो लगता है प्लेटो की भी एकेडमी थी। प्लेटो का स्कूल नहीं था,
प्लेटो की यूनिवर्सिटी नहीं थी, प्लेटो की एकेडमी थी। आर्मी की भी एकेडमी होती है, एकेडमी का आर्मी का स्कूल नहीं होता है, मिलिट्री का स्कूल नहीं होता है, एकेडमी होती है। पुलिस की भी एकेडमी होती है, पुलिस का भी स्कूल नहीं होता है। तो ये पुलिस आर्मी का, प्लेटो का स्कूल क्यों नहीं होता है, एकेडमी क्यों होती है? और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल क्या है? हमें लगता है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपको एक खाका खींचते हैं कि व्यक्ति इस तरीके का होना चाहिए, अगर उस खाके के अनुरूप आपको बनना है तो एकेडमी ही आपको तैयार कर सकती है, स्कूल नहीं। क्योंकि स्कूल ओपन होता है और एकेडमी के सामने एक लक्ष्य होता है। आर्मी वाले को पता होता है कि उसको किस तरीके का सैनिक बनना है, पुलिस वाले को पता होता है उसको किस तरीके का पुलिस का वॉलंटियर बनना है, पुलिस का सिपाही बनना है, पुलिस का ऑफिसर बनना है। और जब आप एकेडमी में पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किस तरीके का विद्यार्थी बनना है, उस तरीके का विद्यार्थी बनना है जिस तरीके का समाज चाहता है, समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं, समाज की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, समाज की जो एस्पिरेशंस होती हैं, अगर संस्थाएं उनके अनुरूप से विद्यार्थी बना पाए तब तो संस्थाओं का वजूद रहेगा। और अगर उस तरीके के विद्यार्थी नहीं बना पाए तो संस्थाओं का वजूद नहीं रहेगा। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमको पता ही नहीं है कि हम क्या बने, कैसे बने, ये तो बात की बात। कहते हैं आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके सामने मॉडल नहीं है, उसके सामने आइडियल नहीं है। आज आपके पास गांधी नहीं है, आज आपके पास मालवीय नहीं है, आज आपके पास टैगोर नहीं है, आज आपके पास भगत सिंह नहीं है, आज आपके पास वो महापुरुष नहीं है जिनको दिमाग में रख करके आप ये तय कर सको कि हम ऐसे बनेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद उसी कमी को पूरा करने का थोड़ा इशारा करते हैं कि अगर तुम अपना मॉडल नहीं बना पाए तो दुनिया कहती है कि हमारा मॉडल देखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल कोई नई चीज नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, दुनिया की क्या समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि आप उनसे बेहतर लक्ष्य बना सकते हैं अगर आप तय करेंगे। अरे पश्चिम जो पहले ये नहीं मानता था कि महिला में आत्मा होती है, जो पश्चिम जो पहले ये नहीं मानता था कि महिला पुरुष कभी बराबर हो सकते हैं, अमेरिका का संविधान पढ़ो, पहली लाइन है ऑल व्हाइट मेन आर इक्वल। वो पहला डिफरेंशिएशन करता है, ऑल व्हाइट मेन आर इक्वल, मतलब व्हाइट एंड ब्राउन आर नॉट इक्वल, व्हाइट एंड ब्लैक आर नॉट इक्वल, एंड व्हाइट मेन आर इक्वल, मेन एंड वीमेन आर नॉट इक्वल ना। वो पश्चिम तो मानने लगा आज कि नदियों में भी जान होती है। न्यूजीलैंड में नदी को प्राणी का दर्जा दिया गया, हम गंगा को मां का दर्जा नहीं दे पाए। न्यूजीलैंड में अगर नदी के साथ आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे नदी पल्यूट होती है तो आपके ऊपर उसी तरीके का मुकदमा चल सकता है जिस तरीके का मुकदमा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के कारण चलता है। तो वो पश्चिम जो पहले इतना पिछड़ा था वो आगे इतना बढ़ गया, और हम जो पहले इतने आगे। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी है व्हाइट मैन बर्डन। उस किताब में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा कि जो हम गोरे लोग हैं, जो हम सफेद लोग हैं, हम पर एक बहुत बड़ा बोझ है व्हाइट मैन बर्डन में कि दुनिया के लोगों को हमें शिक्षित करना है, दुनिया के लोगों को बताना है कि हम किस तरीके से चलें। मनुस्मृति में एक श्लोक है, एतद्दस्प्रसूतस्य सकः सात्रक जन्मनः स्वं स्वं चरित्र संस्कारितेन पृथिव्याम सर्वमानवः, कि इस दुनिया के लोगों को हम शिक्षित करने के लिए नहीं, पृथ्वी के सभी लोगों को संस्कारित करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आप खाली शिक्षित करोगे,
आपको 10 बार मिलेनियम गोल तय करने पड़ेंगे, आपको 10 बार सस्टेनेबल गोल पैदा करने पड़ेंगे। और अगर आप पृथ्वी के सभी लोगों को संस्कारित करोगे तो ये गोल आपको बार बार तय नहीं करने पड़ेंगे। जो एक बार मानवता के गोल हैं उनको आप पाने में हरदम सक्षम होगे हो। मनुस्मृति कहती है कि हम पढ़ाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम दुनिया के सभी लोगों को संस्कारित करने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर संस्कारित करने के लिए पैदा हुए हैं तो जो मिलेनियम गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला गोल क्या है? भूख को खत्म करना। अरे भूख है क्यों? भूख इसीलिए तो है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास नहीं पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत अन्न है, कुछ लोगों के पास नहीं अन्न है। कहते हैं जापान का एक व्यक्ति जितना नेचुरल रिसोर्स खपाता है, अगर दुनिया का हर व्यक्ति उतना नेचुरल रिसोर्स खपाने लगे तो हमको 11 पृथ्वी और चाहिए ना। अगर ये बंटवारा नहीं होता कि कुछ लोगों के पास ज्यादा होता, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल आपने तय किया कि हम भूख को खत्म करेंगे, हम हंगर को खत्म करेंगे, हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे, वो खत्म करने की नहीं पड़ती अगर आप संस्कारित होते। ये हमारा देश ऐसा देश है जिसमें वॉलंटरी पॉवर्टी की कंसेप्ट रही। वॉलंटरी पॉवर्टी, हम जानबूझ करके गरीब होना चाहते थे। हमारा विद्वान व्यक्ति जंगल में एक लंगोटी के साथ जाता था, राजा वानप्रस्थ आश्रम में सब कुछ छोड़ करके जाता था। हमारे पास वॉलंटरी पॉवर्टी की कंसेप्ट की, और अगर वॉलंटरी पॉवर्टी की कंसेप्ट हो तो किसी को कष्ट कहां से हो सकता है, किसी को भूख कहां से हो सकती है, किसी को गरीबी कहां से हो सकती है। और अगर भूख गरीबी न होती तो फिर यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल आता ही नहीं। तो अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, सिंह साहब कह रहे थे ना कि शिक्षा पहले समाज केंद्रित थी, समाज समाज को चलाता था, आज सरकार समाज को चलाता। पहले गुरुकुल से पत्र आता था कि शासन में ये कमी है, शासन में बैठे लोगों आप अपने आप को सुधारो। अब शासन से पत्र आता है यूनिवर्सिटी में ये कमी है, आप इसको सुधारो। अरे जो शासन में बैठे हैं अगर वो यूनिवर्सिटी सुधारने लगे तो आपको 1000 बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने पड़ेंगे। आपने 2000 में मिलेनियम गोल बनाए थे, कहा था 2015 तक पूरा हो जाएगा मिलेनियम गोल, कहां पूरा हो गया? 2015 कब का खत्म हो गया? 2014 में फिर आपने रियो डी जेनेरो में तय करके बैठ करके कुछ गोल बना दिए, यूएनओ ने मिल करके उनको 17 नाम दे दिए, 2030 दे दिया, 2030 में फिर बैठोगे, फिर इसी तरीके से गोल तय करोगे। अभी 17 तय किए हो, आगे 27 तय करोगे, कुछ और समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं वो 17 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कहीं कोई ना दो राय। विवेकानंद ने कहा था कि गिव मी फर्स्ट ब्रेड देन आस्क अबाउट माय रिलीजन। पहले मुझे रोटी दो तब पूछो कि हमारा धर्म क्या है। एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो पूजा करता है वो भी आदमी है, जो नमाज पढ़ाता है वो भी आदमी है, जो नमाज के बाहर मस्जिद मंदिर के बाहर जूते चुराता है वो भी आदमी है, जो आपका शव उठा लेकर के शमशान घाट ले जाता है वो भी आदमी है, जो डेड बॉडी को जलाता है वो भी आदमी है। सभी आदमी है। अगर हम आदमी को आदमी बना पाते तो दुनिया में कोई समस्या नहीं थी कि हम आदमी को आदमी नहीं बना पाए। और हम आदमी को आदमी क्यों नहीं बना पाए, हम अपने आप से पूछे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। कभी हम अपने आप से, हमें लगता है कि हमारी सब समस्याओं का जो जड़ है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जब आप मिलेनियम गोल की बात करते हो, 1996 में जिन पर बात हुई, 2000 में जिनको आपने दिया, तो उसके बाद एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क भी दिया कि अगर इन गोल को पाना है तो हमको एजुकेशन में क्या करना पड़ेगा।
तो एजुकेशन में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने 4-5 बातें बताई थी। 5 बातें उन्होंने ये बताई थी कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा, जो टर्म मेरे पास कहीं लगा लिखा हुआ है कि उन्होंने 5 चीजें क्या बताई थी। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आपको मेजर करना पड़ेगा, आपको मापना पड़ेगा कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास के लायक हो कि नहीं है? तो सबसे बड़ी तो समस्या हमारे पास यही है कि हम जिस क्लास में हैं उस क्लास के लायक हैं कि नहीं। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, किसी में से बातचीत हो रही थी, मैंने पूछा कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कितनी पुरानी होगी, आप सब लोग तो एजुकेशन में कितनी पुरानी होगी? 1190 की यूनिवर्सिटी है करीब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लगभग 800 साल से ज्यादा हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटियों का बड़ा अजीब सा रिश्ता है। हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी 1192 में जलाई गई। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। जहां जलाया था वहां पर एक रेलवे स्टेशन है बख्तियारपुर, आज भी है ना? बख्तियार खिलजी ने 1192 में नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई। जब हम चरम पर थे तो विश्व में हमारा व्यापार में 24% हिस्सा था। 1190 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किन्हीं विद्वानों ने नहीं बनाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कुछ लफंगों ने बनाई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चर्च ने नहीं बनाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी राजा ने नहीं बनाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद्वानों ने नहीं बनाई। कुछ लड़के, उस समय इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी नहीं थी, यूनिवर्सिटी फ्रांस में थी, पेरिस में थी उससे पहले। जो यूके के बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे फ्रांस में पढ़ते थे पेरिस यूनिवर्सिटी में, उसमें कुछ बहुत नालायक थे। उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में बड़ी शैतानी की, बहुत नालायकी की। फ्रांस के लोग पता नहीं लगा पाए कि किन लोगों ने नालायकी करी, तो उन्होंने जितने इंग्लैंड के बच्चे थे उन सबको निकाल दिया। और जब उन बच्चों को निकाल दिया पेरिस यूनिवर्सिटी, तो वो लोग ऑक्सफोर्ड में उनमें से कुछ इकट्ठा होकर के, कुछ पैसा जोड़ करके, ऑक्सफोर्ड वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहां पर टीचर को तनख्वाह बच्चे देते थे। उन नालायक बच्चों ने, मैं नालायक न कहूं, मतलब शैतानी की होगी इसलिए नालायक, लेकिन उन लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके कुछ टीचर हायर किए, टीचर हायर करके वहां पर पढ़ाने की व्यवस्था शुरू करी। और 1190 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शुरू हुई। वहां पर, जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शुरू हुई, अगर आप वहां जाओ उस चौक पर, तो मेन चौक पर एक 2x2 का एक ऐसा गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा नहीं, मतलब एरिया है कि पूरा रोड तो पक्का है लेकिन वो जगह कच्ची है, वहां पर मिट्टी है। एक छोटा सा जैसे यज्ञ का कुंड होता है वैसा बना हुआ है। मैंने पूछा कि यहाँ क्या हुआ, सब जगह तो पक्का रोड बना हुआ है, ये क्यों कच्चा बना हुआ है? तो लोगों ने कहा कि नालायक तो थे ही ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ने आए थे, जिन्होंने शुरू किया था, तो उनकी गांव वालों से भी नहीं बनी ना? तो जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे वो गाउन पहनते थे, जो गांव वाले थे उनको टाउन वाला कहा जाता था। तो कहे 1193-94 में गांव और टाउन में झगड़ा हो गया, फिर मारपीट हो गई। और फिर मारपीट होने के बाद में टाउन वालों ने गांव वालों को भगा दिया। स्वाभाविक था, गांव वाले ज्यादा थे तो उन्होंने भगा दिया। अब उनमें से भाग करके वो लोग कहाँ इकट्ठे हुए? वो लोग कैम्ब्रिज में इकट्ठा, और उन लोगों ने दूसरी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1210 में, 1190 में ऑक्सफोर्ड बनी, 1210 में कैम्ब्रिज बनी। ऑक्सफोर्ड वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, कैम्ब्रिज गए, फिर उन लोगों से कहा आप लौट करके आओ। कुछ लोग लौट करके आए, कुछ लोग लौट करके नहीं आए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का झगड़ा अभी भी चला करता है, उसको ऑक्स ब्रिज बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड को ऑक्स, कैम्ब्रिज का ब्रिज, दोनों को मिला करके ऑक्स ब्रिज बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि 1190 में जब इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी बनी, 1192 में हमारी नालंदा खत्म कर दी गई। जब हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई तो दुनिया में हमारा कद कम हो गया।
24% से व्यापार में हमारा हिस्सा दिनों दिन घटने लगा और उनकी यूनिवर्सिटी की परवरिश प्रफुल्लित होने लगी, पल्लवित होने लगी, तो दुनिया में उनका डंका बजने लगा। जहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी, दुनिया पर कंट्रोल उसका, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब, वहाँ का नियंत्रण दुनिया पर से खत्म हो गया। तो अगर हमारे संस्थान अच्छे हो तो मिलेनियम गोल को तय करने में हमारी महती भूमिका। और हमारे विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हमको वो पढ़ाया गया। अगर हम मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम देखें अपना, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कब बनी? 1857 में। कॉलेजेस कब बने? 1826 में। 1826 से पहले हमारे पास कॉलेजेस नहीं थे। एलिफेंस्टन कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये सब 1826 में आए। फिर 1857 में उनको यूनिवर्सिटी बनाया। उससे पहले 1826 से जो ये कॉलेजेस थे, ये लंदन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो जब 1857 में हमारी लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। लेकिन 1860 में लंदन यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए हम अपनी यूनिवर्सिटी को 2 साल के लिए बंद किए देते। लंदन यूनिवर्सिटी 2 साल के लिए बंद कर दी गई। उन्होंने अपने सिस्टम को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया और दोबारा रीस्ट्रक्चर करके फिर 1863 में नए तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था करी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी आज भी 1857 के मॉडल पर चल रही है। दुनिया में एफिलिएटिंग कैरेक्टर कहीं नहीं है यूनिवर्सिटी का। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका छोड़ दो, हमारे यहाँ एफिलिएटिंग कैरेक्टर ही है। जिस यूनिवर्सिटी के पास जितने ज्यादा कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा अमीर, और जिस यूनिवर्सिटी के पास कम कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटी उतनी गरीब। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि एफिलिएटिंग कैरेक्टर नहीं होगा, हर संस्थान यूनिवर्सिटी होगा, सेंट्रल एकेडमिक भी यूनिवर्सिटी होगा। मैं साउथ कोरिया में था। साउथ कोरिया उत्तर प्रदेश का 1/4 है, पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी है। मैंने पूछा यहाँ यूनिवर्सिटी कितनी है, उन्होंने कहा 450 यूनिवर्सिटी। अब उत्तर प्रदेश का 1/4 साउथ कोरिया, पॉपुलेशन 1/4, यूनिवर्सिटी 450। मेरी समझ में नहीं आया, तो पता चला यहाँ तो सब कुछ यूनिवर्सिटी ही होता है, कॉलेज तो होते नहीं। या तो है तो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। हमें लगता है शायद हर संस्थान अगर यूनिवर्सिटी होगा तो आपको एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, इम्तिहान कब होगा। सिलेबस में क्या रखा है? हम सिलेबस में परिवर्तन ही नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस भी जो होता है वो बाहर से इंपोज किया जाता है। कहते हैं सिलेबस जो करिकुलम होता है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। वो 3 तरीके क्या होते हैं कि सिलेबस या तो आप पर इंपोज किया जाता है, किसी बाहर की एजेंसी ने बना दिया और कहा कि एमडीएस यूनिवर्सिटी ने बना दिया, आप उसको पढ़ाओ, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कैरिकुलम आप पर इंपोज किया जाता है या कैरिकुलम डेवलप किया जाता है। आप मिल बैठ करके तय करते हो कि क्या क्या कैरिकुलम में हो, और यह कैरिकुलम इवॉल्व होता है। बेसिकली कैरिकुलम इवॉल्व होना चाहिए। अगर आज यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही है और लगता कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा है, शाम को वो आपके एजुकेशन के सिलेबस में होता तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती। और वो तभी संभव होता जब सेंट्रल एकेडमी यूनिवर्सिटी होती। वो तभी संभव होता जब यूनिवर्सिटी में खाली बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं होती, यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल नहीं होती, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का अप्रूवल जरूरी नहीं होता। जो विद्यार्थी ने जरूरी समझा, जो टीचर ने जरूरी समझा, वो उसने कैरिकुलम में रखा। और कैरिकुलम कवर नहीं होना चाहिए, कैरिकुलम डिस्कवर होना चाहिए। जिस दिन कैरिकुलम आप डिस्कवर करोगे, आप डिस्कवर करोगे, उस दिन आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे। उस दिन आप संस्कृत निष्ठ बनोगे। आप, और जब संस्कृत निष्ठ बनोगे तो फिर भूख की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर पॉवर्टी नहीं होगी, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर महिला पुरुष में आप अंतर नहीं करोगे, फिर बच्चियां मारी नहीं जाएंगी, फिर
इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो उतना बढ़ेगा नहीं। फिर जो होगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पर बंटवारा नहीं होगा, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। हम सब मिल करके काम करेंगे, पिंड और ब्रह्मांड एक साथ काम करेंगे, व्यस्त से समस्त की ओर हमारी प्रगति जाएगी। अब इसके अलावा कोई 17 गोल में कोई चीज बची हो तो बताओ। जो आज के 17 गोल है वो हंगर से शुरू होकर के और क्या कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे, पूरी दुनिया मिलकर के प्रयास करेगी। यही 17 गोल है और ये 17 गोल तभी पूरे हो सकते हैं जब हम ऑटोनॉमस हो, जब हम मिल करके काम करें, जब हमारे दिमाग में संशय आए उसको हल करने की हम में क्षमता हो। हमारे दिमाग को हमें काम करने का मौका नहीं दिया जाता, हम दिमाग को खोलते नहीं हैं, दिमाग को बंद करते हैं। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिमाग को खोले, ओपन करे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो। लेकिन आप तो तभी पास होगे जब 2 गुणे 2 4 लिखोगे। जिस दिन 2 गुणे 2 4.5 लिख दिया उस दिन तो तुमको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन असली विद्वान तो वही है जो 2 गुणे 2 4.5 लिखेगा और 4.5 प्रूव करेगा। एक दिन बातचीत हो रही थी, मेरा भतीजा इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसने कहा कि 2 घटाओ 1 बचा। 1 क्यों बचा? हम कितने लोग जानते हैं 1 क्यों बचा? नहीं जानते 1 क्यों बचा। कहीं 2 में से 1 बचा, 1 क्यों बचा? इसका 3 पेज का फार्मूला है। ये 2 में से 1 घटाने पर 1 बचा। अब हमको ये बता दिया गया कि 1 बचा और 1 ही बचे, और जो 1 बोलेगा वो सही है ना। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, सबने बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रेडीमेड नॉलेज है कि जो किताब में लिखा है वही सही है, जो नागेंद्र जी ने कहा वही सही है, जो अनिल शुक्ला ने कहा वही सही है। अरे जो अनिल शुक्ला ने कहा वो नहीं सही है। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद आप लोगों से ही है कि मेरे विद्यार्थियों, मेरे चश्मे से मत देखो। मेरे चश्मे से अगर देखोगे तो तुमको वही दुनिया दिखाई पड़ेगी जो हम देख रहे हैं। दुनिया वो नहीं रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, दुनिया की अपेक्षाएं बदलती रहेगी। आप अपना चश्मा डेवलप करो, और जब आप अपना चश्मा डेवलप करोगे तो आपको अपने तरीके से सोचना होगा। टीचर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो विद्यार्थियों को इस लायक कैसे बना सके। हमारे यहाँ परेशानी ये है कि हमको बता के इंफॉर्मेशन दी जाती है, कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता तो बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन एक क्लास चल रही थी, एक टीचर ने कहीं पर सुना कि बच्चों को टेबल बतानी है, पहाड़ा बताना है, कुछ नए तरीके से बताए। उसने कहीं सुना होगा, उसने कहा बच्चों आज तुमको 9 की टेबल हम बताते हैं ना? 9 तो जानते हो कि 9 नहीं जानते हो? मैं तो गांव से हूँ इसलिए कम से कम मेरा हिंदी ज्यादा ठीक है ना। उसने कहा बच्चों मैं आज आपको 9 की टेबल बताती हूँ। उसने अपनी उंगलियां उठाई 10। उसने कहा पहली उंगली मोड़ो, पहली उंगली मोड़ी, कितनी उंगलियां बची? 9 बची ना, तो 9 बन जाए 9। उसने कहा दूसरी उंगली मोड़ो, तो दूसरी उंगली मोड़ी तो इधर 1 बचा, इधर 8 उंगलियां बची, 9 2 जा 18। उसने कहा तीसरी उंगली मोड़ो, इधर 2 बची, इधर 7 बची, 9 3 जा 27। सब मोड़ते जाओ उंगलियां, 9वीं उंगली मोड़ो, इधर 1 बचा, इधर कितना बचा? अगर 9 9 जा पढ़ रहे हो ना तो आपने ये उंगली मोड़ी, इधर 1 बचा, इधर 8 बचा, 9 9 जा 81। सब बच्चे बड़े खुश। प्रयासी नहीं करना है। 9 1 जा 9, पहली उंगली मोड़ो, दूसरी उंगली मोड़ो, तीसरी उंगली मोड़ो। एक छोटी बच्ची थी, रात भर प्रैक्टिस करती रही, बड़ा मजा उसको आता रहा कि 9 का टेबल तो बहुत आसान हो गया। अगले दिन वो क्लास में आई, उनका नाम थे 9 की टेबल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आज 8 की टेबल बता दो। अब 8 का टेबल नहीं निकल रहा। और 8 का टेबल क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि कंसेप्ट नहीं मालूम।
8 का भी टेबल निकल जाएगा। जब आप 9 का टेबल पढ़ रहे थे तो आपने उंगलियां कितनी ली थी? 10। और जो इधर आपकी उंगली बसती थी उसकी वैल्यू होती थी 1, पूरी 1 दहाई 10। जब गिनते थे ना, आपने जब ये उंगली मोड़ी थी तो ये वैल्यू 10 थी और ये उंगली जो बची थी 8, 10, 8, 18 हुई। 1, 8, 18 नहीं हुआ था, 10, 8, 18 हुआ। और जब इधर की आपने उंगली मोड़ी थी 9, 9 जा, तो जो ये आपकी उंगलियां 8 बची थी, ये 8 नहीं थी, 80 हो गई थी। और 80 के बाद ये 1 बची थी, ये 81 हुई थी। अगर आप 8 की टेबल पढ़ रहे हो तो 9 उंगलियां लो, और जब 9 उंगलियां लोगे तो जो इधर की उंगली बचेगी उसकी वैल्यू 9 होगी, 10 नहीं होगी। और फिर 9 की वैल्यू से जोड़ करके फिर टेबल पढ़ो तो 9 का भी पहाड़ा आ जाएगा, जितनी उंगलियां आपके पास होंगी। तो अगर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान नहीं होंगी। हमको कंसेप्ट कभी हमको ये बताया नहीं गया, हमको बताया नहीं क्या कि हम किस तरीके से दिमाग को खोलें, दिमाग को ओपन करें। हमको तो वही बताया कि घर में पानी तो बह नहीं देगी, थाली तो मेज से उठा करके किचन में लड़की ही रखेगी। कभी बच्चों से ये तो कहते कि क्यों रखेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि अगर बिटिया रख रही है तो बहुत गलत कर रही है। ठीक है, मिल करके काम हमको करना चाहिए। अगर हम ये काम वो कर सकती है तो कभी मुझे जरूरत पड़ी तो हम भी कर सकते हैं। वैसे हम भाषण कर रहे हैं, मैं भी नहीं करता ईमानदारी का मतलब यह है, क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मेरी एजुकेशन प्रॉपर ढंग से नहीं। अगर मेरी एजुकेशन प्रॉपर ढंग से हुई होती तो शायद मैं वो नहीं करता। मैं अक्सर एक कहानी कहता हूँ क्लास में, शायद आपसे आज भी कह लूँ, किसी ने पहले सुनी हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ, कि मैंने क्लास 3री में एक कहानी पढ़ी थी सच्चा बालक की। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि पुराने समय में अरब में काफिले चलते थे और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर नहीं था, तो लोग डाकू लोग जो होते थे वो काफिले को लूट लेते थे। तो एक बार एक काफिला चल रहा था, जा रहा था घर से, तो उसमें एक छोटा बच्चा था। तो उसकी माँ ने चलते समय उस छोटे बच्चे की जैकेट में 2 असरफियां रख दी। बातचीत में कहा कि बेटा झूठ मत बोलना। थोड़ी देर काफिला चल कहानी का कंक्लूजन कुछ ऐसा था कि आगे चल के वो बच्चा बहुत बड़ा फकीर बना, अरब में कुछ नाम उसका लिखा हुआ था, और डाकुओं के सरदार ने भी लूटपाट छोड़ दी, वो भी आगे चल के कोई बड़ा संत हो गया। अब अगर मैंने ये कहानी पढ़ी थी, हम तो बीएड वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का डेफिनेशन क्या होता है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। कि लर्निंग तब तक नहीं होती है जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना हो। अगर मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए? कि मैं झूठ न बोलूं। हाँ? लेकिन कहते हैं कि घोड़े की जबान और मर्द की लगाम अगर हिलती डुलती नहीं है तो मजा नहीं आता है। हाँ? तो अभी जब कभी मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत जबान ऊपर नीचे हो जाती है। अगर जबान ऊपर नीचे हो जाती है तो इसका मतलब उस कहानी को मैंने सीखा नहीं, क्योंकि लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो लर्निंग नहीं हुई। वो कहते हैं कि लर्निंग इज पॉसिबल विदाउट टीचिंग, बट टीचिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लर्निंग। आप सीख तो सकते हो बिना पढ़ाए हुए, लेकिन आपको अगर कुछ पढ़ाया गया और आपने सीखा नहीं तो पढ़ाना व्यर्थ है। तो जब उस किताब में लिखा हुआ था झूठ मत बोलो, मैं अभी झूठ बोलता हूं। किस किताब में लिखा हुआ है कि भूखे को खाना न दो? किस किताब में लिखा हुआ है कि पेड़ों को काट डालो? किस किताब में लिखा हुआ है कि महिलाओं को परेशान करो? किस किताब में लिखा हुआ है कि लड़के लड़कियों में अंतर करो? किस किताब में लिखा हुआ है कि मिलकर के काम न करो? किस किताब में लिखा हुआ है कि इनोवेशन न करो? जो किताब में लिखा है, जो पढ़ाया गया वो मेरे में आया नहीं, जो मेरे में आया वो कहीं लिखा नहीं है। तो जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी थी उन्होंने हमको ढंग से पढ़ाया नहीं। अगर ढंग से हमको पढ़ाते तो आज मैं यहाँ नहीं होता।
मैं भी उन दुर्गुणों से मुक्त होता जिन दुर्गुणों की मुक्ति के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लोग ट्राई कर रहे हैं, महम कर रहे हैं। अगर अच्छे शिक्षक मिले होते तो मैं भी बहुत अच्छा होता। अगर अच्छे नहीं बनोगे समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग तो मूलतः गांव के हैं। हमारे गांव में 3 लोगों को बड़ा सम्मान मिलता था। एक सम्मान मिलता था लेखपाल को, पटवारी ना, किसी की जमीन किसी के नाम कर दे, कह दे कि तुम्हारा खेत यहाँ से है, लोग वहीं से मान लेते थे। गांव वाले उसको बड़ा इज्जत देते हैं कि भाई खेत कहाँ से कहाँ तक बता दे। दूसरा जो सम्मान मिलता था काफी ज्यादा, वो स्कूल टीचर को मिलता था। इसलिए मिलता था क्योंकि गांव घर में जो बाहर जो घटित होता गांव में वही बताता था। पहले तो अखबार नहीं थे, पहले तो रेडियो नहीं थे। मेरी माँ कहती है कि गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई, अगले दिन प्राइमरी स्कूल के टीचर ने बताया था कि कल गांधी जी की हत्या हुई, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं था। गांधी जी की हत्या की अगले दिन स्कूलों में कंडोलेंस भी नहीं हुई थी, क्योंकि गांधी जी को पता ही नहीं था कि गांधी जी की हत्या हो गई। हमारे संचार के साधन इतने कमजोर थे। और कहे तीसरी जो बड़ी इच्छा जो बहुत पूजा होती थी वो पोस्टमैन की होती थी ना? इसलिए होती थी क्योंकि वही चिट्ठी लाने वाला था, वही चिट्ठी ले जाने वाला था, वही चिट्ठी लिखने वाला था, वही चिट्ठी पढ़ने वाला था ना, क्योंकि लिटरेसी का लेवल बहुत कम था। लेकिन जिस पोस्टमैन का लोग भगवान की तरीके से रास्ता देखते थे कि कब हमारे दरवाजे पर आएगा, आज वही पोस्टमैन होली दीपावली पर 2-2 रुपए की बख्शीश मांगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन बदल गए, क्योंकि आपके पास मोबाइल हो गया, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर हो गए। मुझे पोस्टमैन के साथ सिंपैथी है, लेकिन हमें चिंता आपकी है कि अगर हम शिक्षकों ने अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीकों को नहीं बदला तो हमारा भी हालत वही होगा जो पोस्टमैन का हुआ है। हम भी होली दीपावली 2-2 रुपए की बख्शीश मांगेंगे, देने वाला कोई नहीं होगा। तो समय के साथ बदलें, समाज के साथ बदलें, जो समाज की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करें। अगर समाज की अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर पाए तो हमको समाज बहुत दिनों तक स्वीकार नहीं करेगा। 19वीं शताब्दी का माइंडसेट 20वीं शताब्दी का प्रोसेस 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता है। आपको माइंडसेट बदलना होगा, आपको प्रोसेस बदलना होगा, और जब माइंडसेट प्रोसेस बदलोगे तभी आप 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों को पूरा कर पाओगे। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है, घड़ी देकर आपको नहीं होगा ना, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अगर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थाओं को बदलें तो निश्चित रूप से जो 17 गोल ही उन्होंने तय किया है उन गोल्स को हम आसानी से पा पाएंगे। आज टीचर्स से हम अपने आप से पूछें, किसी ने कहा कि 21वीं शताब्दी के शिक्षक में चाहिए क्या, तो कहे कि शिक्षक को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम 3-4 चीजें पूरे करने में सक्षम हैं। तो कहे वो कौन सी चीजें हैं जिनको शिक्षक पूरा करने में सक्षम हो। तो उसने कहा, आर वी रेडी टू टीच द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन द क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में अमीर बच्चे भी आते हैं, गरीब बच्चे भी आते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसे साधन हैं कि हम दोनों तरीके के बच्चों को एक साथ पढ़ा सकें? क्या हम इतने सक्षम हैं? और जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं तो लगता है कि या तो हम गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं या तो हम अमीर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज शिक्षा प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर नहीं रह गई है। आज शिक्षा अमीर की शिक्षा है, गरीब की शिक्षा है। 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। हमारे पास ऐसे टीचर हो जो अमीर गरीब दोनों को एक साथ एक उत्साह के साथ पढ़ा सके, तब तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। और अगर अमीर गरीब दोनों बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सके तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के प्राइमरी एजुकेशन में जो कमी आ रही, गिरावट आ रही है, उस पर अध्ययन किया गया क्यों आ रहा है। उन्होंने एक बड़ा अजीब सा कारण बताया
उन्होंने कारण बताया कि जो सन 50 में हमारा स्कूल सिस्टम था, प्राइमरी स्कूल था, उसमें जो बच्चे पढ़ते थे और जो टीचर पढ़ाते थे, बच्चों के पेरेंट्स की इनकम और टीचर की इनकम दोनों में 3 गुने का अंतर था। कि अगर पेरेंट्स की इनकम 1 रुपया महीना थी तो टीचर जो पढ़ाता था उसकी इनकम 3 रुपए महीने रही होगी। उन्होंने कहा कि टीचर और बच्चों में इकोनॉमिक क्लास की दूरी नहीं थी। फिर उनका कहना था कि 2015 में जो प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो उनको टीचर पढ़ा रहे हैं, दोनों में 75 गुने इनकम का अंतर है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स की इनकम बहुत थोड़ी है, वो लो इनकम ग्रुप के हैं, और टीचर्स की सैलरी में ठीक ठाक इजाफा हुआ है, 50,000 रुपए 60,000 रुपए का मंथली का हुआ है। तो कहे 75 गुने का अंतर है। अब इस इकोनॉमिक क्लास का अंतर होने की वजह से जो मैडम वहां पढ़ाने जाती हैं उनको चिंता रहती है कि मेरी साड़ी तो गंदी नहीं हो जाएगी अगर बच्चा छू लेगा, बच्चा पास फटक ले तो महक से अंतर पड़ता है, और ये जो महक का अंतर है ये टीचर और स्टूडेंट में दूरी पैदा करता है। उपनिषदों में कहा गया कि मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो, सीखो। किचन में माँ खाना बनाती है, बच्ची उसके पास खड़ी होकर के सीख लेती है। बताना नहीं पड़ता है कि मसाला कितना पड़ेगा, नमक कितना पड़ेगा, मिर्च कितना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वो प्यार से खड़ी होती है, सब चीज देखती है, सीख लेती है। जो उपनिषदों का कंसेप्ट था कि मेरे पास आकर के बैठो, ज्ञान प्राप्त करो, और आज विद्यार्थी और शिक्षक देखो, पास पास तो छोड़ो, आस पास भी नहीं, बहुत दूरी। हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स का नाम नहीं जानते, उनके परिवार के बारे में जानना तो दूर की बात है। कितने विद्यार्थी हैं ये नहीं जानते। क्लासरूम में रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, उधर से अक्सर अरे एक की हाजिरी नहीं होती। हाजिरी राम की होती है, हाजिरी श्याम की होती है, हाजिरी बलराम की होती है, हाजिरी 1, 2, 3, 4 की नहीं होती है। गांव शहर में यही अंतर है। आप पूछो कि ये किसका बच्चा है तो वो कहेंगे राम प्रसाद का लड़का है। शहर में पूछो किसका बच्चा है तो कहेंगे वो 569 नंबर के घर का है। ट्राइबल एरिया में जाओ, झोपड़ी पर, सुंदर झोपड़ी पर, गोबर से लिपी हुई झोपड़ी में टूटे फूटे शब्दों में लिखा होता है सुस्वागतम, स्वागतम, शुभागमन। वाइस चांसलर की कोठी पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। अब आपको सुस्वागतम वाली शिक्षा चाहिए, कुत्ते से सावधान वाली शिक्षा चाहिए, आपको तय करना है। बातें बहुत कही जा सकती हैं, बड़ा लंबा सा चीजें हो सकती हैं, लेकिन खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं वो भूख से शुरू होकर के कोऑपरेटिव एफर्ट्स डेवलपमेंट के जो है वहां तक जाते हैं। पहला हंगर से शुरू होता है और दूसरा पूरा विश्व एक साथ मिल करके प्रयास करे डेवलपमेंट के लिए, उस पर जाकर के खत्म होता है। हमको इंडिविजुअल सेल्फ से हट करके कलेक्टिव सेल्फ की तरफ जाना है। हमको अपने समाज की जो पुरानी अच्छाइयाँ थी उनको एक बार सोचना होगा। अगर कोई कमी हो तो हम उनको दूर कर लें, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर से हटे तो उन्नति बहुत दूर तक नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि पतंग तभी तक उड़ती है जब तक डोर आपके हाथ में रहती है, और जिस दिन डोर आपके हाथ से छूटी, कटी, पतंग थोड़ी दूर उड़ती है, उसके बाद नीचे आ जाती है। अगर आप अपने वैल्यूज से जुड़े हैं, अगर आप अपने कल्चर से जुड़े हैं, अगर आप अपनी भाषा से जुड़े हैं, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, तो आप इस आसमान पर, उन्नत के आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ोगे। और आपकी संस्कृति क्या है? आपकी संस्कृति पश्चिम वाली संस्कृति नहीं है, जहां पर इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ाई जाती है कि गरीब का शोषण होगा,
हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ लखनऊ में वाजिद अली बादशाह जब बनवा रहे थे इमामबाड़ा, दिन में पढ़ाते थे और रात में गिरवाते थे, और रात में इसलिए गिरवाते थे कि सबको काम मिलना चाहिए, फ्री में पैसा किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, गरीब है अमीर है, काम सबको मिलना चाहिए, सब काम मिले, सब काम खाएं। और हमारा वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है उसके पास पैसा जुड़ता रहेगा। हमको पॉलिटिकल साइंस इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है कि हम कॉलोनियां बनाएंगे, हमको पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ाई जाती थी कि हम सब लोग मिल करके एक, हमारे यहाँ जैसे पहले तो पाटलिपुत्र और उसके पास में वैशाली, कहते हैं कि पहली डेमोक्रेसी जो है वहां से शुरू हुई, वैशाली से। तो हम वैशाली जैसी डेमोक्रेसी हमारी संस्कृति हमको देती है। हमको मेडिकल साइंस इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि जो खाली सबल होगा उसी को जीने का हक है। अरे हमारे यहाँ निर्बल को भी जीने का भी हक है। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये रही कि एक आदमी कमाएगा तो परिवार के जो कमजोर लोग हैं उनको भी खिलाने की उसकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ इंडिविजुअल सेल्फ की कंसेप्ट नहीं रही, हमारे यहाँ कलेक्टिव सेल्फ की कंसेप्ट रही। और बस मैं अपनी बात प्रेमचंद की कहानी के साथ खत्म करूंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मंत्र की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, प्रेमचंद की मंत्र की, जिसमें शहर में डॉक्टर रहते थे। एक गरीब आदमी भगत अपने बच्चे को दिखाने के लिए उनके पास जाता है। डॉक्टर का क्लिनिक का समय खत्म हो गया था। डॉक्टर उस बच्चे को देखने से मना कर देते हैं। भगत बहुत प्रार्थना करते हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन डॉक्टर साहब का खेलने का वो समय होता है और वो बिना बच्चे को देखे हुए खेलने चले जाते हैं। बच्चे की जान नहीं बचती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर का बच्चा शहर से, विदेश से लौट करके आता है। वहां उसको एक सांप काट लेता है। उस समय सांप के काटने के लिए जहर उतारने की दवा नहीं होती थी, तो मंत्र पढ़ करके जहर उतारने की कोशिश की जाती थी। पीठ में पीतल की थाली चिपकाई जाती थी, मंत्र पढ़ा जाता था। कुछ मिट्टी के छोटे छोटे ढीले मारे जाते थे। जहर जैसे जैसे कम होता जाता था, पीतल की थाली पीठ से छूटती जाती थी। गांव में मुनादी होती हुई, और पहले सब पर यह बंधन था कि अगर कोई मंत्र जानता है सांप काटने का तो किसी भी स्थिति में हो वो सांप का जहर उतारने के लिए जाएगा। भगत जी के कान में आवाज पड़ी कि डॉक्टर के बच्चे को सांप ने काट लिया है। भगत जी जाने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, सोच लो कि वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा था। भगत ने कहा, हाँ वही डॉक्टर है। पत्नी ने रोका। भगत जी थोड़ी देर रुके, फिर उनका मन नहीं माना। पत्नी ने सोचा कि मैं कितना भी कह लूं ये रुकेगा तो है नहीं, तो चुपके से वो चारपाई पर लेट गई। भगत को लगा कि वो सो गई। भगत जी चुपके से उठ करके गए, जा करके मंत्र पढ़ा, जहर उतरा। डॉक्टर ने बहुत कुछ उनको देना चाहा, बिना कुछ लिए दिए भगत साहब आकर के अपनी चारपाई पर लेट गए। मेरी इच्छा है कि आपकी पढ़ाई ऐसी हो कि आप डॉक्टर चड्ढा न बनो, भगत बनो।